राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान कोलकाता, जो हावड़ा दासनगर में स्थित है, उसने बड़े उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। यह पखवाड़ा 16 से 31 जुलाई तक रहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, आज 61 साल हो गया बोला है हमें इस NCSTI को देखते हुए, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का बड़ा काम होता है, जहाँ पर बच्चों को रोजगार के लिए कई काम ऐसे सिखाए जाते हैं जहाँ से वो सीखकर अपने घर परिवार को चला सकते हैं। गिफ्ट ঠিক আছে ও আচ্ছা by vested interests, people with vested interests, to defame the government, to destabilize the government, to act contrary to the interests of people of the country. For that purpose, PAB has also launched a fact check. What I've seen, especially during Operation Sindoor, PAB fact check played a very important role in distilling the untruths, the lies, the falsehood. Because, as you know, for social media there are no boundaries. There is no sense of. We got the brick and mortar target. And the village which is having the population more than 2,000, we have the banking outlet at that place. Either in the shape of branch, or in the shape of ATM, or in mobile bank, or a business correspondence. We have also ensured that no one person in the West Bengal should move more than 5 kilometers for availing. आज की जो वार्ता थी आर्थिक अनुभूति एवं प्रशिक्षण, आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? ये एक वार्ता एक कार्यक्रम है जो वार्ता एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या पत्र सूचना कार्यालय जो है अक्रॉस द कंट्री at the regional levels organized so as to facilitate interaction with media on a regular basis. So we have a smaller version is the Varta, and we have a slightly bigger version called Vartala. These programs are mainly aimed to create awareness about various ongoing as well as new schemes of Government of India, various programs ongoing as well as new schemes, new policies that are being brought about. Then we have new laws which are being made, so to create like the BNS, so to create awareness about all these schemes through media to general public. These programs are organized by Press Information Bureau under the aegis of Varta and Vartala. So this is basically an interaction program with media. So we provide a platform. We bring experts because AAB is not the expert in everything. So we bring experts from different organizations. Say like we have organized a program on financial inclusion. So we brought experts from banking sector. The CGM of NABARD has come. Then the SLBC का जो GM है वो भी आया है. So we will create a forum and a platform so that they interact with the media. And through media, whatever is the awareness that needs to be created is clear. सर, पश्चिम बंग वित्तीय समावेश और स्थिति के बारे में जो आपने बताया, क्या नहीं, मैं मतलब बैंकिंग के एक्सपर्ट बता सकता हूँ के बाद नाबार्ड से सर है और पंजाब नेशनल बैंक से थे, उन्होंने जो बताया उससे तो स्थिति क्या समझ में आई, आपको क्या समझ में आई और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? Actually, I think this question has to be asked to the banking. I am a communicator, so this is the banking field or banking experts who can, because I'm not very much aware of the banking situation here. So it will be best left to our friends from the banking industry to ask them, who can better explain to you. Thank you, sir. Thank you. आप अपना नाम डेजिग्नेशन TVK Reddy, T. Vijay Kumar Reddy, DG, East Zone, Press Information Bureau, Government of India. थैंक यू. So a few apologies to everyone around here. So we take this opportunity on this workshop. ये जो प्रेस वार्ता हो रहे हैं, हमारा जो मुख्य अतिथि बोलूँ या जो रिसोर्स पर्सन्स, ESLPCC चेयरमैनशिप पॉइंट चल रहे हैं, इंटेंसिव प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम आप लोग के बीच में इसके बाद और ये we want to reach out to you so that you can at least reach out so that people are aware that these programs are on.
and we can apply for it. We would also like to welcome the CGM of NABARD, Shri ये नीचे कैमरा नीचे लो सर आइए सर आइए Thank you. We have just felicitated our CGM NABARD. Now we are going to felicitate SLBC GM PNB Sri Balbir Singh ji, and it has already occurred. This is one aspect, and then another aspect is about providing the assurance of continuous assured flow of funds in the form of pension, so and investment opportunities. So these are broad kind of range of services which are expected from the financial system for the people whom we are targeting to reach and connect through the financial services. If we see from historical background, the financial inclusion efforts have been a long history. They have a long history. There is a long canvas. It can be traced back to setting up of agricultural cooperative societies, which were formed in 1904, in order to provide loans to the farmers in those years, in those times, when they were in the grip of money lenders. आपने जो बैंकिंग की जो सिस्टम है उसके बारे में जो बातें बताई वो दर्शकों तक ज़रूर बताएं। थोड़े हिंदी में बताएंगे तो कुछ हिंदी भाषियों को भी इसके बारे में जानकारी होगी। नाबार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इम्प्लीमेंट करते हैं। नाबार्ड में फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड एक सेटअप किया गया है जो भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से सेटअप किया गया था। इसका 500 करोड़ रुपए के धनराशि से एक पर्पज से सेटअप किया गया और इस फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड से रूरल एरियाज में जो बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक और अन्य जो संस्थाएं हैं, पेमेंट बैंक्स, सभी को, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सपोर्ट करता है ताकि ग्रामीण स्तर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए पोस्ट मशीन्स, एम-पोस्ट मशीन्स, एटीएम फैसिलिटी या फिर वहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं, जैसे इंटरनेट नहीं है या पावर सप्लाई नहीं है तो यूपीएस या रीसेट या SD वैन फैसिलिटी, ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं। और सोलर पावर सेटअप करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि सोलर पावर से जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो कंप्यूटर चल सकेगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो पाएगा। इसी तरीके से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो इंडिविजुअल ग्रामीण स्तर पर एक बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का एक सिस्टम होता है, BC का एक सिस्टम होता है। BC से डोर स्टेप पे स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए पैसा दिया जाता है, तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए ड्यूअल ऑथेंटिकेशन का सपोर्ट करने के लिए कि ऑथेंटिकेशन जो आदमी जिसका अकाउंट है वही आदमी अपने पैसे ट्रांजैक्शन कर रहा है इस अकाउंट से, तो उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है जिसमें कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी अपने डिजिटल
वेरिफिकेशन देता है और कस्टमर भी डिजिटल वेरिफिकेशन देता है। उससे वेरीफाई होता है कि ये ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है और किसके लिए हो रहा है, और उससे ऑटोमेटिकली अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। तो वो वेरिफिकेशन की सुविधा भी फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आप बंगाल में हो सर, और बंगाल में बैंकिंग की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, तो आपका जो बंगाल गवर्नमेंट के साथ है वो क्या कोलैबोरेशन किस तरह का है? हमारा जो राज्य सरकार वेस्ट बंगाल की है, नाबार्ड का जो प्राइमरी इंगेजमेंट है राज्य सरकार के साथ, वो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक है। उस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में राज्य सरकार के जो प्रायोरिटी, जो ज़रूरतों के हिसाब से मेन कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए हम राज्य सरकार को लोन उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें वित्त जो विभाग है राज्य सरकार का, वो सारे प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटी करता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपने अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, हेल्थ सेंटर्स के लिए, या वेटनरी सेंटर्स के लिए, या फिर रोड्स के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, जिस तरीके की भी फैसिलिटी गवर्नमेंट चाहते हैं कि रूरल एरियाज़ में जिसकी कमी है, प्रायोरिटीज के बेसिस पे वहाँ पे डेवलप करी जाए, वो प्रोजेक्ट वो तैयार करते हैं। वो प्रोजेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रायोरिटाइज होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ही राज्य सरकार को मिल पाता है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये जो राशि है भारत सरकार की अनुमति से निर्धारित की जाती है, जिसमें रिजर्व बैंक का सहयोग रहता है कि वर्ष दर वर्ष कितने राशि के कंसेशनल लोन हम दे सकते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पे लोन आता है उसको फिर नाबार्ड प्रधान कार्यालय से अलग अलग राज्यों के लिए उसका बंटवारा किया जाता है, और उसी अमाउंट तक हम लोग लोन दे सकते हैं। तो अभी पिछले वर्ष हमारे को 1650 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई थी। तो 1650 करोड़ रुपए की हमने ऋण राज्य सरकार को सैंक्शन करवाए। उसके बाद राज्य सरकार की हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई कि हमारे को और भी प्रोजेक्ट सैंक्शन चाहिए, तो वो लिमिट बढ़ा के हमने 1900 करोड़ रुपए की करवाई। 1900 करोड़ रुपए की लिमिट के अगेंस्ट में हम लोगों ने राज्य सरकार को 1904 करोड़ रुपए के लोन पिछले साल में सैंक्शन किए। धन्यवाद सर, आपने जो हमें राज्य सरकार के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और डेजिग्नेशन प्लीज़ बोल दीजिए। मैं पीके भारद्वाज, मुख्य महाप्रबंधक वेस्ट बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय से, और मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि राज्य सरकार प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो निर्धारित प्रायोरिटी है उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं ग्राउंड लेवल पे, और उसकी DPRs बनाते हैं, और प्रॉम्प्टली पूरी जल्दी से त्वरितता से और पूरे निर्धारित प्रारूप में वो DPRs हमारे को सबमिट करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करके सैंक्शन करवा पाते हैं, और उसके अगेंस्ट में फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है वैसे वैसे उनको लोन उपलब्ध करवा पाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।